Hello friends, I am Sirdhi Jain. Hello friends, I'm Sirdhi Jain. I'm a CA and a CS and I'm here for you to teach you audit. So when it comes to audit is generally considered as one of the subjects which is considered very hard when it comes to writing answers in audit. So I'll try to make audit a very easy subject for you. And anybody who is going to attempt, they may attempt May 2024, you can watch this video. This first video is created very specifically covering chapter 4. Chapter 4 is audit evidence, a very important chapter. You know why it's very important? ये CA final के लिए भी relevant है, CA inter के लिए भी relevant, and somebody who is giving the paper in 2023 November, उनके लिए भी ये equally important है. So the topic is audit evidence. When I talk about audit evidence, now from where am I going to teach? So the answer is I'm going to teach you from the new study material that is issued by ICAI. So at the back what you can see is the new study material. So whenever I say about evidence, now suppose for instance you are a kid and your parents said you are no, don't order from Zomato and Swiggy, and then you actually did it. So what is the first thing that you do is सारे उसके जो ट्रैश होते हैं यू एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द हाउस, राइट? तुम एविडेंसेस मिटाते हो सबसे पहले. नाउ हु इज एन ऑडिटर? समबडी हु डज ऑडिट इज एन ऑडिटर. So auditor, in order to draft an audit report, needs audit evidence. Evidence क्या होता है जनरल टर्म में? सबूत. There is nothing fancy about this particular topic. It's a very simplified topic. The whole chapter is covered in like 122 pages. I'm going to compress it short to make it look easy for you to study. So in audit evidence, there are a lot of things that we are going to see. This is the first, very first page of your book, which says the heading audit evidence. यहाँ पे दिया हुआ है what we are going to read in audit evidence in your book. Actually, first, what we are going to study is what audit evidence actual में is. What audit evidence is. It's given in 4.5 page. So this is it. So audit evidence कभी भी क्या होता है? एक information होती है. So audit evidence is an information जो auditor use करता है in order to arrive at conclusion. Conclusion for what? जिसके ऊपर वो अपना audit opinion को base करेगा. So audit evidence is an information जिसके ऊपर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बेस करेगा, अपने ओपिनियन को बेस करेगा. ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? नाउ इट इज एन इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट थिंग फॉर अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच बेसिस ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड अपॉन. ये कैसी इंफॉर्मेशन होती है? ये इंफॉर्मेशन या तो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होती है या अदर इंफॉर्मेशन होती है. दो टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या तो ये अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपकी है उससे मिल रही है, या कोई अदर सोर्सेज से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑडिट एविडेंस, देयर आर टू थिंग्स दैट आई विल टॉक अबाउट. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. व्हाट इज SAAE? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है? जब मैं लाइफ में किसी चीज में सफिशिएंसी की बात करती हूँ, मम्मी खाना देती है ना घर पे, सो व्हाट डू यू वांट इट टू बी? इट शुड बी सफिशिएंट एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट. मतलब उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो सफिशिएंट इज योर क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस इज योर क्वालिटी. Similarly, with your audit evidence, it should be sufficient, appropriate audit evidence. When I say sufficient, appropriate audit evidence, sufficient here means your quantity and appropriateness is quality of the evidence जो आप use कर रहे हो अपने audit evidence के लिए, जिसके ऊपर आप अपनी report को base करते हो, जो actually एक kind of information है. जिस information को use कर रहे हो आप, वो है ये. Now, in the coming pages, टाइप्स ऑफ एविडेंस. इज इट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स? यस. ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, ये बहुत सारी चीजें आपके लिए रिलेवेंट रहेगी फॉर एग्जाम्स. नाउ दो टाइप के ऑडिट एविडेंस है. पहला ऑडिट एविडेंस कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन सोर्स. सेकेंड इज डिपेंडिंग अपॉन नेचर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, इंटरनल सोर्स या फिर एक्सटर्नल सोर्स. या आपको इंटरनली कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है या एक्सटर्नली कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है. दो ही टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या इंटरनली मिलने वाली या एक्सटर्नली मिलने वाली, राइट? ओके. सो यू आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
जो कि नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर क्या होता है? तुमने विजुअली कोई कुछ काम कर रहा है, तुमने उसको देख लिया, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस इज दैट? विजुअल। किसी ने आपको मौखिक बोल दिया, आके किसी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंस इज दैट? दैट इज vocabulary, so that is oral. Visual, oral, and one is documented. Somebody wrote something and gave it to you. आपने किसी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से कोई कंफर्मेशन मंगवाया, वो आपको लिख के आया. What kind of confirmation is that? That is third party confirmation. डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आ रहा है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, लीज के, लैंड के, दे परचेज समथिंग, दे परचेज अ फिक्स्ड एसेट. व्हाट आर दीज थिंग्स? नाउ दीज थिंग्स आर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. दो टाइप के होते हैं, एक नेचर पे बेस्ड, एक सोर्स पे बेस्ड. जो हमारे नेचर पे बेस्ड होता है डॉक्यूमेंटेड, विजुअल या ओरल. जो हमारे सोर्स पे बेस्ड होता है वो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग्स दैट इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर यू? नाउ ऑडिट एविडेंस जो होता है वो रिलायबल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? रिलायबल ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. तो व्हेन आई से रिलायबल, When I say reliable मतलब किसी के ऊपर, तुम अपने दोस्त के ऊपर बहुत रिलाई करते हो ना. इनफैक्ट दोस्त से ज्यादा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर रिलाई करते हो, राइट? सो यस, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट और रिलायबल. इफ यू वांट टू चेक ऑन योर गर्लफ्रेंड, रिलायबिलिटी के लिए तुम चार लोगों से पूछते हो ना, किससे बात करती है, उससे भी पूछते हो, राइट? बहुत बार वो आपको प्रूफ भी देती है, मैसेज भी दिखाती है, फोन भी दिखाती है, राइट? You actually want your things to be reliable in your normal life. Now your audit evidence should also be reliable. How an audit evidence is reliable? इसके लिए बेसिकली 5 पॉइंट्स में कवर किया है. क्या ये इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है एग्जाम का? यस, ऑब्वियसली दिस इज एन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज any information that is obtained from an independent source. word क्या है यहाँ पे? from an independent source. तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रही है, आउटसाइड द एंटिटी, बाहर से कोई इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसी हुई आपके लिए? रिलायबल इंफॉर्मेशन हुई. सेकेंड, अगर कोई इंफॉर्मेशन इंटरनली जनरेट हो रही है और इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है. नाउ फर्स्ट टाइम आई यूज द वर्ड इंटरनल कंट्रोल. व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनल कंट्रोल? घर में जब आप रहते हो तो देयर इज अ स्टैंडर्ड, देयर इज अ वे ऑफ लिविंग इन हाउस, राइट? यू कैन सिट इन पर्टिकुलर प्लेस, you can sleep at particular place. Then if you have a good control system at your place, you might be having cameras at your house at few specific places. हर घर का, हर ऑफिस का एक डेकोरम होता है, एक इंटरनल कंट्रोल होता है, वहाँ का वे ऑफ वर्किंग होता है. किसी किसी ऑफिस में, इफ आई से अबाउट बैंक्स में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, देयर इज एन एथिकल वे, आप पंच करते हो, अंदर जाते हो. व्हाट इज दैट? दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल मतलब अंदर के मैकेनिक्स, जिस हिसाब से वो इंडस्ट्री काम करती है, राइट? तो अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है और आपको कोई ऑडिट एविडेंस इंटरनली जनरेट किया हुआ मिला, तो वो ऑडिट एविडेंस क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा. नाउ डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, if it is the reliability of audit evidence that is generated internally is increased when related controls including those over preparation and maintenance imposed by entity are effective. इसका मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत हाई है और इंटरनली जनरेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो आपके लिए क्या होगी? रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी. पहली, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रही है. दूसरी, इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है और आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनली कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो आपके लिए कैसी होगी? रिलायबल होगी. नाउ द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली ऑडिटर को मिली. आपको कोई डायरेक्ट आके कम्युनिकेट कर रहा है, गर्लफ्रेंड आके डायरेक्ट बोल रही है कि मेरा तो थर्ड पर्सन से अफेयर है. So now what is that? That is a direct information. ऑडिटर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो क्या है? रिलायबल है. So this is a reliable information. अब लिखित में कोई चिट्ठी है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को लिख दी है तुम्हारे अलावा, व्हाट इज दैट? दैट इज एन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन. वो भी ओरिजिनल कॉपी मिल रही है ना, कोई फैक्स नहीं है, कोई फोटोकॉपी नहीं है, कोई जेरोक्स नहीं है. So what is that? That is their original documentation. So that kind of audit evidence that is documented at the same time, that is a original document, not a photocopy, not a fax, not in electronic form.
तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही तो दैट इज अ मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। 5 टाइप की इन्फॉर्मेशन जो ज्यादा रिलायबल होती है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिल रही है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हाई और इंटरनल मिल रही है, डायरेक्ट ऑडिटर को मिल रही है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल रही है, यस, एंड द लास्ट थिंग इज ओरिजिनल कॉपी मिल रही है। अगर आपको ओरिजिनल कॉपी मिल गई मतलब ये ऑडिट एविडेंस बहुत रिलायबल हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कवर्ड हियर। व्हाट इज दैट? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ये 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे वहां पे। Now we talked about 2 words. What were those 2 words? One was sufficient, other was appropriate. मैंने आपको बताया ना, अगर आपको मम्मी खाना देती है तो व्हाट डू यू सी कि वो कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसकी क्वांटिटी बराबर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बराबर होना चाहिए, राइट? 2 things, quality and quantity. Now what I'll cover next is factors affecting auditor's judgment फॉर सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी सही होनी चाहिए, राइट? मतलब अब उसमें तीन फैक्टर्स जो उसकी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को इफेक्ट करते हैं। व्हाट इज मटीरियलिटी लेवल? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मटीरियलिटी लेवल तुमको पता है क्या होता है? मटीरियलिटी लेवल, if my height is like 5'6", my materiality level is this। अगर मुझे पानी में डाल दोगे तो यहां तक पानी आएगा is my threshold, इसके बाद तो I'll be like, oh I'm going to die। somebody who is taller than me like 6 feet, उसका मटीरियलिटी लेवल, उसकी नोज थोड़ी हाई होगी तो डेफिनेटली उसका मटीरियलिटी लेवल थोड़ा हाई होगा। मटीरियलिटी लेवल इज योर पेन पॉइंट लेवल, ऐसा लेवल ऑडिट एविडेंस का जो उससे क्रॉस कर गया तो अब प्रॉब्लम होने वाली है। कितना ही सफिशिएंट, कितना ही अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, लेकिन अगर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां पे कुछ मेजर गलती हुई है तो वो क्या करेगा? आपकी ऑडिट एविडेंस को इफेक्ट करेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग efficiency and appropriateness of audit evidence, the first thing that you have to remember is materiality। materiality मतलब आप उस threshold level को cross कर दिए, और अलग अलग होता है ये for every audit, there is a different level of materiality। ऐसा कोई standard नहीं है 1000 मेरा materiality level है, no boss, there is no specific standard for what your materiality level is। So the first factor that affects the sufficiency and appropriateness of audit evidence is materiality। What is the second factor? Risk of material misstatements। कभी भी रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट नहीं लिखा था, मटीरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कुछ ऐसा जो मिसस्टेट हो गया ना तो त्राही त्राही मच जाएगी, जहां से जो ऐसी मेजर गलती है जिसके कारण ऑडिटर की कॉलर पकड़ी जा सकती है। तो ऐसा कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर बहुत ज्यादा हाई है तो वो एक फैक्टर है जो सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस को इफेक्ट कर रहा है। थर्ड, जब भी आप ऑडिट करते हो, मान लो आप एक हॉस्पिटल में गए ऑडिट करने के लिए, उनके पास 10,000 वाउचर है, तुमने क्या सोचा? 700 से 800 को चेक कर लेता हूँ। फिर क्या सोचा? 1 से 100 को चेक कर लेता हूँ। फिर क्या सोचा? 2000 की सीरीज के 5 वाउचर चेक करूंगा, 5000 की सीरीज के कुछ वाउचर्स और चेक कर लूंगा। तुमने ऐसे सैम्पलिंग बनाई अलग अलग वाउचर्स को चेक करने की। तो जब सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस की हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या चीज थर्ड ऐसी जो इफेक्ट करती है वो है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन? एक पर्टिकुलर साइज, बहुत सारे बंडल ऑफ तुम्हारे पास सेल्स इनवॉइसेस पड़े, उसमें से तुम कुछ चेक कर रहे हो। सो व्हाट इज दैट? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इज लाइक 10,000, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कितने मटेरियल स्टेटमेंट है, कितने 1 लाख से ज्यादा है, कितने 10 लाख से ज्यादा है, कितने 1 करोड़ से ज्यादा है। मान लो मैंने ऐसे सेट कर लिया कोई बेंचमार्क अपनी मटेरियलिटी लेवल का, तो वो, so these are the 3 things, factors affecting auditor's judgment as to sufficiency of audit evidence। पहला materiality, दूसरा degree of risk of material misstatement, size and characteristics of population as a whole में क्या misstatement होगा। जब हम risk of material misstatement की बात करते हैं तो risk of material misstatement में when you will read it तो यू विल फाइंड इनहेरिएंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क नाम की 2 चीजें एक्सप्लेन की गई है। व्हाट इज इनहेरिएंट रिस्क? इनहेरिएंट क्या होता है? मुझे इनहेरिटेंस में हाइट मिली है
बट इनहेरिटेंस में जो चीजें मिलती है वो आपको विरासत में मिलती है, विरासत में पुश्तैनी चीजें जो मिलती है। इनहेरिटेंस में राजा का बेटा राजा बन जाता है, राइट। तो इनहेरिटेंस रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट जिसके कारण हम ऑडिटर को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इनहेरिएंट रिस्क। कोई ऐसा रिस्क चाहे कितना ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल हो, उसके बावजूद भी जो रिस्क छूट जाता है वो इनहेरिएंट रिस्क कहलाता है। इस इनहेरिएंट रिस्क का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, यू आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर अबाउट रिस्क एंड कंट्रोल्स, लाइक इंटरनल कंट्रोल का पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आप। नाउ ये जो रिस्क है इनहेरिएंट रिस्क, इसको आप रोक नहीं सकते कितना ही अच्छा आपका इंटरनल कंट्रोल, जब इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट नहीं भी रहेगा ना तो ये आएगा ही आएगा। मतलब नेगेटिव फॉर्म, क्या फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है। व्हाट इज सेज इज अगर आपके यहाँ इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो ये रिस्क रहेगा ही रहेगा, राइट। दूसरी चीज कंट्रोल रिस्क, कितना ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल रख लो, तुम्हारा ABC अकाउंट बैलेंस, अकाउंटिंग बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस में और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में इस टाइप के रिस्क तुमको मिलने वाले हैं। ये कौन सा रिस्क है, कंट्रोल रिस्क। ये सारे रिस्क कितना ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल रहे वहां पे दिखेगा ही दिखेगा। ये दोनों रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कवर होते हैं, राइट। व्हेन यू रीड इट, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आफ्टर आई टीच यू एवरीथिंग, गो थ्रू योर स्टडी मटेरियल, रीड इट थॉरली एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक recall every single statement written in your book. Why do I ask you to read the book in spite I teach you? The fact is there are a lot of true and false and objective type questions that come in your exams. I'm trying to cover those, but still there are things that can be asked. Since the study material is new, go through it. When the study material is new, the institute might, and there are probable chances कि पूरा जो कोर्स, पूरा जो क्वेश्चन आएगा वो तुमको स्टडी मटेरियल से आएगा। यस, ये एक राज है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर और दूसरा प्रोसीजर जो आप लगाते हो वो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दो टाइप के प्रोसीजर है, वन इज रैप, अदर इज फैप, ठीक है। अब ये जो फैप होता है इसके दो सब पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर द टू सब पार्ट्स, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। और इसको ही टेस्ट ऑफ डिटेल्स को सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर बोला जाता है। नाउ व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल आपको चेक करना है। जब भी आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनल कंट्रोल मतलब कितने अच्छे से हमारी वर्किंग है, कितने अच्छे से हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जब भी आप इंटरनल कंट्रोल चेक करते हो, तुम्हारी बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन चेक करता है? डॉक्टर, राइट। तो जब तुम इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे तो यहाँ पे भी किसको बुलाओगे? डॉक्टर। नाउ व्हाट विल दिस डॉक्टर डू? DOC, डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखोगे कि उसकी डिजाइनिंग कैसी हुई है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितनी है ये देखोगे। किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। पहली क्या देखोगे? डिजाइनिंग, दूसरी उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तीसरी इसकी कंटिन्यूटी, मतलब बराबर से वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब आप इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर भी किसका? ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने का। जब आप ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करोगे तो यू हैव टू फिगर आउट टू थिंग्स, वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर वन इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के दो पार्ट्स होते हैं, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी क्या आता है? इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग कैसी हुई है, इंप्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, इसको मेंटेन कैसे कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है, डिजाइन कैसे की है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या है और वो आज कितने अच्छे से कंटिन्यूड चल रहा है। इसमें भी जब उसको आप बनाओगे तब आप उसको क्या करोगे? उसके लिए इंक्वायरी करोगे, ठीक। दूसरी चीज,
आप उसको परफॉर्म करके देखोगे और इंस्पेक्शन करोगे, परफॉर्म एंड इंस्पेक्ट। डॉक्टर जब आता है तो इंक्वायरी करता है ना, पहले क्या क्या हुआ था, परफॉर्म करता है प्रोसीजर्स, बीपी ऑपरेटर लगा के, थर्मोमीटर लगा के, राइट, मे बी एक्सरे मशीन पे सीधा ले जाके देन इट इंस्पेक्ट करता है, राइट, सारी चीजों को। सो व्हेन इट कम्स टू योर इंटरनल कंट्रोल, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जब आप इंटरनल कंट्रोल को देखोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को देखोगे, तो डॉक्टर को बुलाओगे, क्या देखोगे, डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उसकी कंटिन्यूटी, और इंक्वायरी, परफॉर्म और इंस्पेक्ट, ये सब लगा के आप उसको बनाओगे, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ये क्या होता है मैम, ये पूरा एक ऐसे है, आपको पढ़ाएंगे हम आगे। बट ये जो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है, इसमें होते हैं एसर्शंस, आई विल शो यू समटाइम्स लेटर, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स जिससे आप ऑडिट एविडेंस को ले सकते हो, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। नाउ यहाँ पे जो ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस है, ये भी ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस है। मैम एग्जाम में आगे ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो क्या लिखूं सर, ये मेथड्स हैं, methods for obtaining audit evidence, right? These are the methods for obtaining your audit evidence. When I say methods for obtaining audit evidence, आपको क्या चीज को याद करना है, अपनी इंस्टीट्यूट को याद करना है। और इंस्टीट्यूट को एविडेंस चाहिए कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, तुमसे मंगाए होंगे ना 12th की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, बीकॉम पास हुए नहीं, एविडेंशियल हो गया तो चलो इंटरमीडिएट में आ जाओ। वैसे ही ये जो मेथड्स हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म आई टेल यू, ICAI, ORR, ठीक है। व्हाट इज I हियर, I इज इंस्पेक्शन। आप सारे रिकॉर्ड्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल एसेट्स को जो चेक कर रहे हो इज इंस्पेक्शन, दिस इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, राइट। द फर्स्ट थिंग इज I से इंस्पेक्शन, राइट। व्हाट इज C, what is C here? C में आप क्या लोगे, यहाँ पे C में है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैम एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, थर्ड पार्टी से कंफर्म करना। मेरा लैंड है, किसी थर्ड पार्टी के पास गिरवी रखा हुआ है, मुझे उससे वैल्यूएशन पूछनी है, तो मैं क्या करूंगी, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकती हूँ, कि यस मैनेजमेंट से पूछ के उससे कंफर्मेशन ले सकती हूँ। ये क्या हो गया, एक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। व्हेन आई से मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, इट मींस मेथड क्या हो सकता है, पहला इंस्पेक्शन, दूसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऐसे क्या है 505, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, मैं उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊंगी। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, टू एक्सप्लेन यू वेरी सिंपली व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर इज, इट इज अ सिंपल थिंग। आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, मान लो ये सेल्स का ग्राफ है तुम्हारा, y एक्सिस x एक्सिस, तुम क्विक रेशियो निकालते हो, तुम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हो, ये सब क्या है, तुम एनालाइज करके निकालते हो चीजों को। तो ये सारे जो एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, ये क्या होता है, तुम्हारा एक मेथड होता है, किसके लिए, ऑडिट एविडेंस निकालने के लिए। उसका जो मेथड होता है उसको एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। सो ICA, अगेन वन मोर I इज योर इंक्वायरी। एग्जाम में डायरेक्ट आता है इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी क्या होती है, तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इंक्वायरी निकाली, कभी कोई लड़का देखते हैं या लड़की देखते तो उसकी इंक्वायरी निकालते ही हैं अपन। एंड व्हाट दैट इंक्वायरी मीन्स, ये जो इंक्वायरी होती सीकिंग एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन, तो वो पूछता है व्हाट इज इंक्वायरी, सीकिंग एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन इज कॉल्ड एज इंक्वायरी, और जो वापस उसका रिस्पॉन्स आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंफर्मेशन, राइट। सो ICAI। ORR, व्हाट इज O हियर, O इज कोई काम कर रहा है, कोई अपनी स्टॉक की काउंटिंग कर रहे हो और आप उसको खड़े होकर देख रहे हो, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। आप वहां जाके क्या कर रहे हो, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ICAI ORR, सिर्फ आपने जाके क्या किया, वहां पे ऑब्जर्व कर लिया जो वो काउंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को तुम ऑब्जर्व करके ये एविडेंस निकाल लेते हो,
right? So that is observation. Now there are 2 R's. 2 R's are for Riddhi? नहीं. 2 R's. 1 R is for re-performance, other R is for recalculation. Re-performance किसी का किया हुआ काम आप बाद में फिर कर रहे हो. मैनेजमेंट का काम होता है सारी चीजों को मेंटेन करना. फाइनेंशियल बुक्स भी वो मेंटेन करती है, बनाती भी वही है. तुम्हारा काम क्या है? उसको जाके चेक करना, राइट? तुम कुछ चीजों को रीपरफॉर्म कर सकते हो क्या उस केस में? कुछ चीजों को रिकैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस. उसके कैलकुलेट, क्या वहां पे कैलकुलेशन बोला है? नहीं. ऑलरेडी उसने कुछ कैलकुलेट करके रखा है. मेरे डेटास इतने आ रहे हैं, इंटरेस्ट इतना मुझे बैंक को पे करना है. तो व्हाट द थिंग्स आर हियर, ऑलरेडी कोई चीज डन है, आप उसको सेकेंड टाइम परफॉर्म कर रहे हो. मतलब पहले किसने किया था? मैनेजमेंट ने कर रखा था. सो यू आर डूइंग दोस टू थिंग्स. वन इज रिकैलकुलेशन, अदर वन इज री-परफॉर्मेंस. आई थिंक दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स. नाउ व्हाट आई थिंक इज, यहाँ पे आप क्लियरली लिख लो, ये मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट प्रोसीजर है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस है. मेक अ शार्प नोट इन योर माइंड. अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है ना, पहला हमने पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है. तो एविडेंस कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसपे ऑडिटर अपना कंक्लूजन क्या करता है? बेस कर देता है, राइट? सेकंड, सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. जैसे खाना होता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, तभी वो आपका ऑडिट एविडेंस बनेगा. नेक्स्ट, आपने क्या पढ़ा था? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रही है तो रिलायबल. इंटरनली आ रही है और इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, रिलायबल. ऑडिटर को डायरेक्टली मिल रही है तो रिलायबल. नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने? ओरिजिनल कॉपी मिल रही है तो रिलायबल, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल रही है तो मच मोर रिलायबल. दीज आर द 5 पॉइंट्स टू चेक इट्स रिलायबिलिटी. फिर हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट प्रोसीजर 2 टाइप के होते हैं. पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा फर्दर ऑडिट असेसमेंट प्रोसीजर. पहले के पार्ट में क्या आया था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. दूसरे पार्ट में क्या आया था? टेस्ट ऑफ डिटेल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमने क्या बोला था? डॉक्टर को बुलाओ, इंटरनल कंट्रोल को चेक करवाओ, इंक्वायरी करो, उसको इंस्पेक्ट करो और परफॉर्म करके देखो, राइट? फिर हमने क्या देखा? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं उसमें. और उसके बाद हमने क्या देखा? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ICAIORR. और हमने क्या देखा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस. उसमें क्या देखा था? पहला लेवल मटीरियलिटी का, दूसरा रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का, तीसरा साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग्स. Yes, I hope this is completely clear to you in your mind. यहाँ पे इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, री-परफॉर्मेंस इसको एक्सप्लेन किया है. Now, what is your risk assessment procedure? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसा ऑडिट प्रोसीजर होता है. ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसा ऑडिट प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म करते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, और आप रिस्क को एसेस कर दो. कभी भी रिस्क को क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. क्या चीज है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट. कभी भी सिर्फ मिसस्टेटमेंट नहीं बोलते, यहाँ पे क्या बोलते हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट को आप देख सको, राइट? सेकेंड इज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, राइट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब इंटरनल कंट्रोल को चेक करना. टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर या एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर लगाना. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर को बुलाते हैं, DOC, राइट? आपको क्या करना है? डिजाइन करना है, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना है और प्रिवेंट, करेक्ट और डिटेक्ट करना है. किसको? मटीरियल मिसस्टेटमेंट. अगर कोई असर्शन लेवल पे हो रही है तो. नाउ व्हाट इज असर्शन लेवल? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज असर्शन लेवल? मैडम आप ये बताओ असर्शन लेवल क्या होता है? आपको मैं असर्शन लेवल बताऊंगी जब बुक में आएगा. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेम, बट स्टिल असर्शन लेवल वो होते हैं जो एक्चुअली पूरे बैलेंस शीट PL को दर्शाते हैं, उसको असर्शन लेवल बोलते हैं. एज ऑफ नाउ आप बस इतना समझ जाओ, ठीक है? नाउ व्हाट इज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर? इफ आई टेक इट अबाउ, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट मटीरियल में स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए असर्शन लेवल पे, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, राइट? नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर के ये एक चार्ट बना हुआ है ऑडिट प्रोसीजर का, राइट? इसमें क्या लिखा है? ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का 2 पार्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, राइट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये गया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ये, और एनालिटिकल प्रोसीजर ये. एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग से ऐसे आ जाएगा,
और यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप हर ट्रांजैक्शंस को चेक करोगे, हर बैलेंस को वेरीफाई करोगे. नाउ दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स, हर चीज को इन डेप्थ में चेक करना. इसका मतलब सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के दो पार्ट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के दो पार्ट्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स. नाउ व्हाट आर द असर्शंस? ये जो assertions है ये एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका शॉर्ट फॉर्म पहले देखते हैं. assertion जो होता है वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? यही मैंने बोला था. आई बिलोंग टू अ स्मॉल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ that was actually divided from MP. So the short form can be CG over MP या फिर कवर MP. कवर MP को याद करने के लिए अगर आपको याद करना हो तो हिंदुस्तान का दिल देखो एक एड बनाया था अमिताभ बच्चन ने, राइट? कवर MP, उसमें बताया था हिंदुस्तान का दिल देखो भैया आपको MP कवर कर लेना चाहिए. दिस वॉज एन एड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गो एंड ट्रैवल टू मध्य प्रदेश. नाउ When I say कवर MP को अगर आपको याद करना है या CG over MP को याद करना है तो COVER and next is MP. Now when I say cover MP, what I mean is COVER MP. इस कवर MP में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, C से इज कंप्लीटनेस, O says occurrence, V says valuation, E says existence, R say right and obligation. राइट? जब आप उसमें M देखोगे तो M से आएगा मेजरमेंट और P से आएगा प्रेजेंट. ठीक. Now when I say cover MP I mean these things. When I say cover MP it means these are the assertions of financial statement. ये आपको याद रखना है, assertions of financial statement. ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने घर से बाहर कहीं और पढ़ते होंगे. घर से जब पापा का फोन आता तो क्या पूछते हैं? अभी कितना बैलेंस बचा है तुम्हारे पास, अकाउंट में कितना बैलेंस है, राइट? यही पूछते हैं ना, अकाउंट में कितना बैलेंस है. पापा ने कॉल किया और क्या पूछा, अकाउंट में कितना बैलेंस है. तुम क्या बोलते हो जब रिसीव होगा बैंक से बैंक स्टेटमेंट, या जैसे ही मैं अपना पेटीएम का बैलेंस देखता हूँ, यूपीआई का बैलेंस देखता हूँ, रिसीव होता है तो बता देता हूँ, राइट? तो व्हाट इज दिस RCB? आर से क्या है, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ई से एग्जिस्टेंस, सी से कंप्लीटनेस, वी से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन. नाउ व्हाट आर दीज आर द असर्शन. इन assertions में आप अपने ऑडिट एविडेंस को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो. दूसरा, अब तुमसे पापा ने पूछा कि भाई कहाँ कहाँ पे तुमने खर्चा किया, किस किस कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस थे, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जहाँ तुम गए जहाँ पे तुमको खर्चा हुआ. तुमको क्या बताना है, सिर्फ तुमने क्या पिया था, कोका कोला, और कुछ और छुटुर पुचुर खर्चे हुए होंगे, कुछ और छोटे मोटे तुम्हारे खर्चे हुए होंगे, राइट? So what are they? Completeness, cut off, then occurrence, accuracy and classification. जब आपसे पूछेंगे कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन सा असर्शन लगा था, तो आपका ये कवर होगा, कोको कोला पिए थे और कुछ और चीजें की थी, राइट? एंड आपको उसको जब प्रेजेंट करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो ये सारे असर्शंस लगेंगे, ORO, CCUAV. लेकिन अगर आपको कवर MP याद है तो आप सारे शॉर्ट फॉर्म्स को क्यूमुलेट करके याद कर सकते हो. ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे असर्शंस हो गए. ये ऑडिट के वो असर्शंस होते हैं, असर्शंस वो चीजें होती है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है. असर्शंस, राइट? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, असर्शंस. रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही होता है जो बैलेंस शीट PL बनाता है. दैट आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो झलकते हैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, उस एरिया में तुमको पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स मिल सकती है जो एरिया कवर किया है कवर एमपी में, राइट? सो दोज आर योर लेवल्स ऑफ assertions, right? There are few examples related to the same. Once you cover it, most of your things are done. What I'll cover, one more thing I'll be covering here. Come to page number 4.32. कभी कभी ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज करता है. मान लो तुमको एक्चुअरी का काम यूज करना है. एक्चुअरी मतलब जो एक्चुअरियल वैल्यूएशन करा होगा लैंड की, हो सकता है अगर लैंड की नहीं कर रहा है तो प्लांट मशीनरी की कर रहा है, हो सकता है ज्वेलरी की एक्चुअरियल वैल्यूएशन निकाल दिया हो. एक्चुअरियल वैल्यूएशन मतलब कोई दूसरा आदमी जो दूसरे काम का एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है भाई? किसी और केस में एक्सपर्ट. तुम्हारे अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट है क्या? नो बॉस. कोई और चीज के वैल्यूएशन में वो एक्सपर्ट है. उसकी डेफिनेशन इसमें दी हुई है क्या? यस. ये कहाँ पे और हम कवर करेंगे मैम? यस बॉस, ये हम कवर करेंगे ऐसे 5 मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स 520 में. ओह सॉरी, दिस इज 620. दिस इज 620. ये हम करेंगे ऐसे 620 में कवर. अच्छा मैम भूल कैसे गए, बता रही हूँ. 610 जो होता है वो इंटरनल ऑडिटर का होता है. 620 जो होता है वो एक्सपर्ट का होता है. अब ये जो एक्सपर्ट होता है, मान लो एक्चुअरी है, तुम किसी और का काम यूज कर रहे हो तो सीधा ले लोगे क्या? तू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो. अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको चेक करना पड़ेगा. तुम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का अगर वर्क यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या देखना है? 3 चीज को इवैल्यूएट करनी पड़ेगी साहब आपको. हैविंग रिगार्ड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, इट इज नेसेसरी फॉर यू कि वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर हुई है उसको आपको देखना पड़ेगा. उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की आपको क्या चीज चेक करनी है? CCOUA. वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो कितना केपेबल है, कौन सी डिग्री रखा है, कौन सी क्वालिफिकेशन रखा है, क्यों तेरा काम मैं यूज करूं. अंडरस्टैंडिंग, वो कैसे वैल्यूएट कर रहा है अपनी चीजों को, किस तरीके से, कौन सा लॉ, कौन सा फॉर्मूला लगा के. अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड उसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी होगी. सिर्फ पैसा कमाना ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सही तरीके से सही चीजों को दर्शाना एक ऑब्जेक्टिविटी होती है. तो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी. सेकेंड, उसका जो काम है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, एज एन ऑडिटर आपको कितनी है. एंड द लास्ट थिंग हियर इज appropriateness of experts work as audit evidence for relevant assertion. ये assertion कौन से हैं? वही वाले जो हमने किसमें कवर किए थे? कवर एमपी में. मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, देन कंप्लीटनेस, अकरेंस, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन. ये चीज आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए. इसी के साथ आपका ऐसे 500 यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो आई वुड लाइक यू ऑल टू जस्ट go through the institute, study material and just read what essay 500 is. एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो आते हैं वो या तो आपको ट्रू फॉल्स बेसिस पे आते हैं, एमसीक्यू बेसिस पे आते हैं, या फिर यू हैव टू राइट दिस होल थिंग. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ICAI ORR. रिलायबिलिटी 5 पॉइंट्स की होती है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, डॉक्टर को बुला लो, ठीक है. उसके बाद अगर कवर एमपी के असर्शंस की बात हो रही है, CG ओवर एमपी मतलब असर्शंस की बात हो रही है. टाइप ऑफ एविडेंस, ऑडिट एविडेंस या नेचर पे बेस्ड होते हैं या सोर्स पे बेस्ड होते हैं. अगर नेचर पे बेस्ड है तो इंटरनल और एक्सटर्नल. अगर सोर्स पे बेस्ड है तो 3 टाइप के. कैसे कैसे? विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री. दैट इज हाउ आई कंप्लीट योर essay 500. Thank you so much for hearing me in this first lecture. I'll cover the next essays of essay 500 series in the coming lectures. And yes, do like and subscribe to this YouTube channel. I'm sure that this will be helpful in your preparation of examinations. Thank you so much.